Hi everyone, welcome to the part 3 of the series which is called Some Basic Concepts of Chemistry, जो है first chapter of 11th class chemistry, right? And अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, I expect you to have watched the last two videos on this topic because एक continuity होनी चाहिए, है ना? So इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे about atomic mass unit, gram atomic mass, and I will just give you a small introduction about the mole concept, ठीक है? I will start from the very basic, and I don't think कि आपने या मैंने इससे पहले 9th 10th में कभी भी इस टॉपिक को ऐसे पढ़ा होगा because see what happens is that people do mole concept, people revise the things, people learn the things and people even vomit it out on the paper and they get the results, right? But problem क्या होती है कि they don't understand the concepts कि क्यों, what is the meaning of atomic mass unit, उसका जरूरत भी क्या थी, mole concept क्यों पढ़ते हैं, ठीक है? So as I always say, whenever you start learning something new, you always should know the reason behind your studying it. उसको पढ़ने का एक reason होना चाहिए. If you're putting your time, energy and everything into something, then there should be a reason behind it, right? तो बस उसी reason को explore करेंगे in this video, and we'll start with mole concept and we will finish mole concept in the next 2-3 videos क्योंकि उन videos में हम उससे questions भी करेंगे different types के, so that we are very very clear with the topic. But we'll start with that now. Clear? So let's get started now. If you ask somebody, just a second. Yeah. So let's say that you ask somebody their weight, okay? Which is not a very polite thing to do, so never do that. But let's say you do, right? So a person who replies to you will be replying to you in a certain kg, right? My weight is certain kg. Let's say this person, this gentleman who's on the slide, उनका weight मैंने उनसे पूछा तो उनका weight था 75 kgs, ठीक है? Then there is some other person जिनका weight मैंने उनसे पूछा, he seems quite a bit off by that, but कोई बात नहीं. इनका weight मैंने इससे पूछा तो he said my weight is nothing but 150 kgs, right? Okay, then let me say that you go to a market and you wanted to buy some potatoes for your house, let's say, ठीक है? तो वो भी तुम क्या बोलते हो कि भैया 1 kg देना, 2 kg देना, कभी कभी तुम बोलते हो कि ऐसा ही बोलते हो कि यार 250 grams देना, but that is nothing but 2.25 kgs, right? So the point of similarity between all these things is कि इन सब का यूनिट है kg, ठीक है? Are you understanding this thing? तो क्या तुमने कभी सोचा कि तुम हर चीज को केजी में क्यों मेजर करते हो? तुम्हारे पास में तुम्हारा फोन पड़ा है, तुम्हारे पास में तुम्हारा लैपटॉप पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, तुम उसका जो भी वेट बोलोगे तुम या तो केजी में बताओगे या ग्राम से मैक्सिमम बताओगे, ठीक है? यू विल नेवर से यू विल नेवर हियर समबडी से दैट माय वेट इज सो एंड सो टन्स और सो एंड सो मेट्रिक टन्स. क्यों? द ओनली रीजन इज कि यार हम लोग काफी कंफर्टेबल हैं. We are comfortable with this unit of kg and we are quite happy with it, so we are don't want any different anything otherwise, है ना? But तुम बड़े selfish हो यार. You only think about yourself and macroscopic things around you. Okay, साइंटिस्ट इतने ज्यादा मतलबी नहीं थे. उन्होंने बोला कि what if we talk about a single hydrogen atom, राइट? अगर मैं एक सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात करूं और उसके वेट की बात करूं, सो डू यू रियलाइज हाउ स्मॉल एन एटम इज? वो इतना छोटा है कि हमें वो दिख नहीं रहा है, ठीक है? अगर मैं ऐसे हाइड्रोजन एटम्स को 10 15 20 700 1000 50,000 भी एक साथ रख दूंगी ना, मुझे तब भी वो दिखाई नहीं देंगे, वो इतने छोटे हैं, ठीक है? सो द पॉइंट बीइंग कि वो इतने छोटे हैं कि उनका मास में अगर केजी में बताने चलूं तो भाई बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी. एंड टू गिव यू अ ग्लिम्स कि कितनी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, इतनी अनकंफर्टेबल हो जाएगी. दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन केजी. जो तुम देख रहे हो कितना अनकंफर्टेबल है इसको बोलना. इफ समबडी आस्क यू इन अ कन्वर्सेशन और तुम उसको बताओगे तो तुम जीरो ही बोलते बोलते शाम हो जाएगी, है ना? सो द पॉइंट बीइंग कि साइंटिस्ट को लगा कि नहीं यार, हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते. हमें अपने आसपास की चीजों के लिए हमने एक यूनिट तो बना लिया, ठीक है, केजीज, बट इतनी छोटी चीजों के लिए विच इज हाइड्रोजन एटम या डिफरेंट एटम्स फॉर दैट मैटर, हमें उनके लिए एक न्यू यूनिट चाहिए जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट. इज इट क्लियर? ठीक है. किसके लिए? स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल एंटिटीज जैसे कि एटम या उस डायमेंशन के, मतलब डिफरेंट एटम्स, ठीक है? उन सबके मास को मेजर करने के लिए हमें एक न्यू डिफरेंट यूनिट चाहिए था विच इज नथिंग बट एटॉमिक, क्योंकि उससे एटॉमिक मास मेजर हो रहा है तो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? Is it clear? This is the only reason why this came into existence, और कोई reason नहीं था, ठीक है? But now if I tell you to open your NCERTs and you will find the definition of one atomic mass unit there, तो तुम फिर डर जाओगे. क्यों डर जाओगे? क्योंकि डेफिनेशन ही इतनी डरावनी है. One atomic mass unit is a mass unit exactly equal to 1/12 the mass of one carbon to isotope. Oh my god, कोई भी डर जाएगा यार. मैं खुद डर गई पढ़ के अभी, है ना? तो लेकिन डरना नहीं है. वी विल जस्ट नो कि ऐसा इतना ज्यादा इतनी मुश्किल डेफिनेशन साइंटिस्ट हमारे दुश्मन तो थे नहीं, राइट? तो अगर वो इतना मुश्किल डेफिनेशन देके जा रहे हैं तो उसके पीछे से कोई रीजन जरूर होगा. तो वो रीजन समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं.
तो उस टाइम पे जब साइंटिस्ट जब थे, जिस टाइम पे ये सब बातें चल रही थी, देखो अभी तो हमारे पास सब कुछ है, NMR है, ES, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, हमारे पास इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स, इतने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं, इतने सेंसिटिव इक्विपमेंट्स है कि हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, आज के जमाने में कुछ भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे साइंटिस्ट के पास एक सबसे ब्यूटीफुल मेजर डिवाइस था, विच वॉज देयर ब्रेन। दे वर सो इक्विप्ड विद इट कि उनको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी। सो व्हाट दे डिड वाज, उनको पता था कि वो हाइड्रोजन एटम का स्पेसिफिक मास जो है उसको मेजर तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेजर करने के लिए, ठीक है। व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बोला ठीक है, हाइड्रोजन एटम का मास क्या है हमें नहीं पता, और डिफरेंट डिफरेंट एटम्स एग्जिस्ट करते हैं ये उनको पता था, पर उनको एक चीज पता थी कि हाइड्रोजन एटम सबसे हल्का है, ठीक है, सबसे ज्यादा पतला है, और आई वुड से इन आवर लैंग्वेज सबसे उसका वेट सबसे कम होगा, ठीक है। दे डिड नॉट नो एग्जैक्टली उसका मास कितना है, उनको सिर्फ इतना पता था कि हाइड्रोजन एटम का मास जो है सबसे कम है, जो भी है हीलियम है, लिथियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सब उससे ज्यादा 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 भारी है, सबसे हल्का जो है वो बेचारा हाइड्रोजन है। तो उन्होंने बोला ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट लाने का डिसीजन हमारा था, तो इसमें जो भी रूल्स होंगे वो भी हम बनाएंगे। तो हम ऐसा रूल बनाते हैं कि हम हाइड्रोजन को 1 बोलेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट, हम हाइड्रोजन को ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरीली साइंटिस्ट ने ऐसा बोल दिया कि हम हाइड्रोजन को 1 AMU मान के चलते हैं, और जो भी अलग एटम्स होंगे हाइड्रोजन से अलग, यानी कि हीलियम, लिथियम और जितने भी होंगे, वो हम इसके रिलेटिव में मेजर करेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर हाइड्रोजन एटम इज 1 AMU, तो हीलियम जो है वो हाइड्रोजन से दुगना भारी है, ठीक है। तो हीलियम विल बी नथिंग बट 2 AMU, क्लियर। सो अगर हाइड्रोजन एटम इज 1 AMU और हीलियम उससे दुगना भारी है, तो दैट विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ 2 AMU। सिमिलरली कार्बन जो है वो 12 AMU है। कहने का मतलब क्या हुआ, कार्बन का मुझे एग्जैक्ट वेट नहीं पता ना, उन साइंटिस्ट को पता था। दे आर ओनली सेइंग कि अगर हाइड्रोजन 1 है तो कार्बन उससे 12 टाइम्स हैवी है, तो वो 12 AMU हो गया। सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन, उनको ये नहीं पता ऑक्सीजन एटम का कितना एग्जैक्ट मास है या कितना एग्जैक्ट वेट है, बट दे सेड कि ऑक्सीजन एटम जो है वो हाइड्रोजन से 16 टाइम्स हैवी है, तो वो 16 AMU हो गया। क्लियर? Am I very clear with this? अभी तक मैं क्लियर हूँ, ठीक है। See, one thing I want to clarify is that mass और weight दो अलग चीजें हैं, they are not the same things, but I will let your physics teacher worry about that. I'm not going to go into detail, but all I'm saying is they are different things, they're not the same thing. But क्योंकि मैं chemistry में deal कर रही हूँ यहाँ पे, तो I will be using them interchangeably, ठीक है। but वैसे वो दोनों अलग चीजें हैं। Clear? Off topic था, but बताना जरूरी था। Now प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि साइंटिस्ट अभी तक बहुत खुश थे कि हम लोग ने चलो भाई सब कुछ डिफाइन कर लिया, हमने बेचारे कार्बन एटम्स के बारे में भी सोच लिया और हमने उनको भी एक यूनिट दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम आ गई कि हाइड्रोजन एक नंबर का धोखेबाज निकला, which means I'm sorry, I should not be using those words, but hydrogen actually existed in form of isotopes. See, now that's why ऐसा ही कि isotopes वगैरह ये जो चीजें हैं ये तुम अपनी 9th और 10th में पढ़ते हो, तो just revise all that before coming into my lectures, क्योंकि बस कुछ नहीं है, बस रिविजन हो जाती है तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड फर्दर, ठीक है। तो आइसोटोप का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, क्लियर, और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक आइसोटोप्स, क्लियर। तो अभी तक हमने हाइड्रोजन को बेस माना था कि वो सबसे हल्का है, उसको बेस मान के चलते हैं, और आगे जाके हम लोग उसके हिसाब से चीजें मेजर करते रहेंगे, ठीक है। पर हाइड्रोजन खुद ही 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग गया, 3 आइसोटोप्स में, मतलब, ठीक है। हाइड्रोजन जो है जिसका मास हम लोग ने 1 AMU माना था, जिसके बाद हम बहुत खुश थे, लेकिन हाइड्रोजन का ही दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम, जिसका हम लोग 2 मान के चलेंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन से दुगना हैवी है, और ट्रिटियम जो कि इससे 3 हैवी हो गया, ठीक है। पर हाइड्रोजन से दुगना हैवी तो हीलियम भी था, हाइड्रोजन से 3 गुना हैवी तो लिथियम भी था, ठीक है। तो अब क्रिएट हो गई बहुत बड़ी कंफ्यूजन, ठीक है। हमने जिसको बेस माना था या जिसको भगवान माना था, उसके खुद ही बहुत सारे रूप निकले, क्लियर। दैट्स वाई हमें उस चीज को हटाना पड़ा। तो साइंटिस्ट को लगा कि यार हमने गलती कर दी हाइड्रोजन को 1 मान के, चाहे सबसे हल्का वही था, सबसे 1 बनना डिजर्व वही करता था क्योंकि हल्का वही था, है ना। बट प्रॉब्लम ये निकली कि हाइड्रोजन के एग्जिस्ट करते थे डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स, तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गई। इफ आई से 2 AMU तो मैं हीलियम की बात कर रही हूँ या ड्यूटेरियम की बात कर रही हूँ। इफ आई से 3 AMU तो मैं लिथियम की बात कर रही हूँ और ट्रिटियम की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो साइंटिस्ट को लगा ठीक है,
बड़ी बात नहीं है, वी शुड जस्ट कम अक्रॉस, हमें एक नई चीज निकालनी है, एक नया एटम ढूंढना है, बस ऐसा होना चाहिए कि उसका जो मास है, उसके जो आइसोटोप्स है वो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। ऐसा कार्बन, सॉरी आई एम सो सॉरी, आई जस्ट गेव आउट द रिजल्ट, बट लेट्स जस्ट छोड़ो उसको। एक ऐसा एटम ढूंढना है जिसके आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो बहुत स्टडीज कंडक्ट हुई, बहुत सोचा साइंटिस्ट ने, एंड दे केम अक्रॉस आंसर। आंसर क्या था? उनको मिला कार्बन एटम। दे सेड लेट्स नाउ कंसिडर कार्बन एटम टू बी द बेसिक एटम, क्योंकि उस टाइम पे साइंटिस्ट को कार्बन के कोई आइसोटोप मिला नहीं, उनको सिर्फ एक ही मिला विच इज 12, जो हाइड्रोजन से 12 टाइम्स हैवी था। देखो आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे तो कार्बन के भी आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन 13 और कार्बन 14, पर वो आज के टाइम पे, ठीक है। उस टाइम साइंटिस्ट को नहीं मिला कोई भी, क्योंकि एक्चुअली बहुत ही कम रेशो में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट को लगा कि ठीक है, कार्बन एटम इज द वन जिसका कोई आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता, तो उनको लगा कि उन्होंने ये जो इतनी बड़ी मिस्ट्री थी उसको सॉल्व कर ली, और उन्होंने मान लिया कार्बन को अब हम बेस मान के चलेंगे, ठीक है। पहले हाइड्रोजन बेस था, पर अब कार्बन बेस होगा। पर प्रॉब्लम इतनी थी कि कार्बन जो था वो खुद 12 AMU था, पढ़ा था ना हमने। सबसे ज्यादा हल्का था हाइड्रोजन विच वॉज 1 AMU, फिर उससे 12 टाइम्स हैवी था कार्बन विच वॉज 12 AMU। क्लियर? तो साइंटिस्ट को लगा यार अब क्या करें, तो बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी थी जिससे हमारा ये 12 1 में कन्वर्ट हो जाए। अब तुम खुद ऐसी कोई मैथमेटिकल चीज सोचो, तुम कैसे किसी चीज को 1 में कन्वर्ट कर सकते हो? किसी भी नंबर को अगर मुझे 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, उसको उसी से डिवाइड कर दूंगी तो हो जाएगा, ठीक है। इफ आई एम डिवाइडिंग 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1, इफ आई एम डूइंग 12 डिवाइड बाय 12 इट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो उन्होंने बस कार्बन को कार्बन के ही वेट से डिवाइड कर दिया, वो बन गया 1 AMU। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू watching this video? ठीक है। तो कार्बन को 1 बनाने के लिए दे जस्ट डिवाइडेड द वेट ऑफ कार्बन बाय दैट वेट इट्स एग्जैक्टली, तो वो बन गया 1 AMU, ठीक है। अब ये जो ये इतनी पार्ट लिखा हुआ है ना, 1 AMU is equal to 12 divided by 12, this is nothing but the definition जिससे तुम स्टार्टिंग में और मैं भी हम इतना डर गए थे, ठीक है। 1 atomic mass unit is a mass unit exactly equal to 1/12 mass of 1 carbon 12 isotope, ठीक है। तो 1 atomic mass unit यानी कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 1 atomic mass unit is a mass unit exactly equal to 1/12 the mass of 1 carbon 12 isotope जो कि है 12 AMU, ठीक है। तो 12 से 12 कटा which is equal to 1 AMU। क्लियर? सो 1 AMU की डेफिनेशन जो यहाँ पे पूछी गई है, जो इतना डर गए थे, वो सिर्फ इतनी सी है। क्लियर? एम आई क्लियर नाउ कि कार्बन ही क्यों, उसको 12 से डिवाइड क्यों किया, और इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट नाउ? ठीक है। मूविंग ऑन, नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू अ जर्नी। जर्नी क्या है? जर्नी है फ्रॉम AMU टू ग्राम्स। देखो बात यह है कि अभी तक हम एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल एटम यानी कि सिंगल हाइड्रोजन एटम, सिंगल कार्बन एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम। लेकिन हम लोग जब एक्चुअली प्रैक्टिकली लैब्स में जाते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम लोग उस टाइम पे एक एटम की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है। हम लोग एक चम्मच में सॉल्ट लेते हैं या कुछ भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेते हैं, तो वो हमें दिख रहा होता है, तो ऑब्वियसली उसका जो मास है वो हम ग्राम्स में ले सकते हैं। उस टाइम में हमें AMU लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अब हमको एक जर्नी पे जाना है, हमको फ्रॉम AMU टू ग्राम्स जाना है, और ये जो ब्रिज है ये हमें क्रॉस करवाएगा एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला है इसका मतलब क्या है? दैट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज द मोल कॉन्सेप्ट, जिससे सब लोग इतना डरते हैं। पर आई होप अब वी विल अग्री कि इसकी जरूरत क्या थी, व्हाई डिड वी हैव टू गो फ्रॉम AMU टू ग्राम्स। क्योंकि बहुत सिंपल है यार, लैब में हम लोग AMU में हमेशा डील नहीं कर सकते, तो अब हमें एवोगाड्रो नंबर की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू व्हाट आई थिंक इज, ये वीडियो काफी ऑलरेडी लॉन्ग हो गई है, सो आई विल स्टार्ट द मोल कॉन्सेप्ट इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो व्हिच आई विल बी अपलोडिंग सून। सो अभी तक की चीजों को अब्सॉर्ब करो, and in the next video we will be crossing this bridge with the help of Avogadro's number, dealing with mole concept, और उससे next videos में हम लोग जम के अच्छे से question solve करेंगे। तो be ready with that and with your calculators, and if you like the video then press the like button। तुम्हें कुछ भी समझ में आया हो तो please do let me know in the comment sections, and if you like it then like दबा देना, and if you like it very much then share it with your friends because it's free and why not, right? So thank you so much, let's meet in the next video।